Hello dear students, good evening to all of you. It's class of PGT and today I will begin a new chapter, that is American English literature. As you have already studied that English literature in America developed after the invasion of America by the Britishers, which began from 16th century, what 17th and 18th, what 17th and 18th century were the centuries of rapid invasion by the Americans and the rest of the European countries. As far as the matter is related to the development of English literature, it developed from 19th century when several important poets, authors, poets and authors began to write the literature on the pattern of English literature, because in 19th century in the history of English literature is as important as the 16th century, and the impressions of English literature is clearly visible, but there is great difference taking the literature, because American English literature more practical, more realistic than the English literature of the 19th century. You yourself can compare, you can make a beautiful comparison between the poems of Alfred Lord Tennyson, and Robert Frost, or other remarkable poets and authors of the day. So from today we will discuss on each issues. But before beginning the discussion on Robert Lee Frost, note down the right response of the questions which were given at the last video of Charles Lamb. And those questions which are given to you are, whose is this line? यह लाइन किसकी है, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1. whose is this line? यह लाइन किसकी है? It is a pleasant world. It is a pleasant, यह दुनिया बहुत ही सुंदर या सुखद है. इट इज ए प्लीजेंट वर्ल्ड. वी लिव इन सर, वर्ल्ड वी लिव इन सर जिस दुनिया में हम रहते हैं. अ वेरी प्लीजेंट वर्ल्ड, अ वेरी प्लीजेंट वर्ल्ड. हुज इज दिस लाइन? यह लाइन कहाँ से ली गई है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सन इट सेल्फ इज वीक. द सन IT इट सेल्फ इज, जब सूर्योदय होता है उस समय पे देखें, इज वीक व्हेन ही फर्स्ट राइजेज, व्हेन इट फर्स्ट राइजेज एंड गेदर्स स्ट्रेंथ, राइजेज एंड गेदर्स, STRENG, and gathers strength and courage as the day gets on. Strength and courage as the day gets on each. A line from इच, अ लाइन फ्रॉम, तो उसी का है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. ओल्ड, यह लाइन किसका है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द डेथ ऑफ ईच डेज होप अनदर होप स्प्रंग्स. फ्रॉम द डेथ ऑफ each day
from the death of each days. Each days. Hope, another hope. Hope. From the death of each day, hope, another hope is sprung. Another hope is sprung up to live tomorrow. Up to live. Is a line from. Is a line from. यह लाइन कहाँ की है? तो यह है ओल्ड क्यूरियोसिटी. ओल्ड क्यूरियोसिटी साप की है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है. डेथ डजंट चेंज. डेथ death doesn't change us more than life is a line from किसकी लाइन है? ओल्ड क्यूरियोसिटी साप. ओल्ड. यह किसकी लाइन है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के लाइन है. नेक्स्ट 5th है. इन लव ऑफ होम द लव ऑफ कंट्री हैज इट्स राइज. इन लव ऑफ होम द लव ऑफ इन लव ऑफ होम द लव ऑफ कंट्री हैज इट्स राइज. is a line from तो old curiosity किसका है? सांप का है. चलें देख लें. तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वह कहाँ से रिलेटेड हैं? वह 19th सेंचुरी द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस महोदय को देखिए तो द ग्रेटेस्ट रियलिस्टिक नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्ड किए जाते हैं. उनके उपन्यास से प्रश्न दिए गए हैं. जो उपन्यास से क्वेश्चंस दिए जाते हैं मोस्टली उनकी जो लाइनें होती हैं वह जो नॉवेल है उसकी टाइटल के आधार पे ही पूछी जाती हैं. ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर होता है. कई बार नाटक जिसे ड्रामा कहते हैं जब प्लेज से प्रश्न आते हैं when the questions mostly come या frequently comes from the plays of Shakespeare और जॉन गाल्सवर्दी. ध्यान रखिएगा ये बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है. जब नाटकों से प्रश्न आते हैं प्लेज से ड्रामा से प्लेज से प्रश्न आते हैं तो वहाँ कैरेक्टर को पूछा जाता है. लेकिन नॉवेल्स में कैरेक्टर नहीं पूछा जाता. वो नॉवेल में कैरेक्टर बेसिकली या मेनली नहीं पूछा जाता और इसीलिए नहीं लिखा जाता. क्योंकि हो सकता है जिस कैरेक्टर का स्टेटमेंट है नॉवेल को देखिए बिकॉज इट कंटेन्स अ होस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. इतने पात्रों को कंटेन करता है कि अब 150 पात्र हैं, 120 हैं, 80 हैं तो हम रिमेंबर तो कर नहीं पाएंगे. जो मेजर कैरेक्टर होते हैं हमारा फोकस किस पे होता है? मेजर कैरेक्टर. या माइनर हैं लेकिन उनका कोई रिमार्केबल रोल है. क्योंकि उपन्यास में जो रोल होता है वो क्या है? एपिसोडिक होता है. किसी एक अध्याय 2 अध्याय में कोई बहुत अच्छा रोल अदा करता है, बाद में थोड़ी देर के लिए वह क्या होता है? डिसअपियर्स फ्रॉम द सीन हो जाता है. इसीलिए जब उपन्यास में लाइनें दी जाती हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर का नाम प्रायः नहीं दिया जाता है. आप किसी को पढ़ें, चाहे थॉमस हार्डी को आप पढ़ो, चाहे चार्ल्स डिकेंस को आप पढ़ो, ये जो लाइनें दी गई हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें होती हैं उनका टाइटल प्ले पूछता है. किस उपन्यास से सॉरी प्ले करिए किस उपन्यास से लिया गया नॉवेल पूछता है. तो पहली लाइन है व्हिच इज दिस लाइन. इट इज़ अ प्लीजेंट वर्ल्ड वी लिव इन सर, अ वेरी प्लीजेंट वर्ल्ड. यह दुनिया बहुत अच्छी है सर जिस दुनिया में हम जीते हैं. क्योंकि देखें तो समटाइम्स इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मैन. समटाइम्स कभी कभार देखें इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मैन दैट ही बिकम्स ओवर प्लीज and begins to compare the earth, this beautiful earth more pleasant even than the heaven or any other thing.
चाहे वो स्वर्ग हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, यह दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। लाइन कहते हैं कि इट इज़ अ प्लीजेंट वर्ल्ड वी लिव इन सर, अ वेरी प्लीजेंट वर्ल्ड। ओल्ड क्यूरियोसिटी साहब की है। द सन इट सेल्फ इज वीक व्हेन इट फर्स्ट राइजेज एंड गेदर्स स्ट्रेंथ एंड करेज एज द डे गेट्स ऑन। बहुत एफोरिस्टिक मुहावरेदार या इपिग्रामेटिक लाइन है, या यूँ कहें कि इंस्पायरिंग लाइन है। द सन इट सेल्फ इज वीक, डोंट थिंक दैट आई एम वीक at the time of rising, at the time of beginning. It is the quality of, it is the nature of this earth that everything remains weak. यह इस पृथ्वी की नियति है। अगर आपने यूल्सिस को पढ़ा होगा, टेंसन का यूल्सिस, तो देखिए कहता है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हॉर्स मेड वीक बाई टाइम एंड प्लेस। कहता है एक तो टाइम का जिसको हमने गिनती कर दिया, जिसे हम कंबाइंड में एज कहते हैं, वह हमको वृद्ध कर देता है। दूसरा, इट इज द क्वालिटी ऑफ दिस मॉर्टल अर्थ विच बाई पासिंग द टाइम मेक्स अ थिंग ओल्ड। यह क्या करती है, उसको ओल्ड बना देती है। तो वही लाइन कहती है कि द सन इटसेल्फ इज वीक, सूर्य भी तो कमज़ोर होता है। जब सूर्योदय होता है, बिगिनिंग में किरणों को देखें तो द सन इटसेल्फ इज वीक व्हेन इट फर्स्ट राइजेज, जब पहली बार इसका अभ्युदय होता है। एंड गेदर्स स्ट्रेंथ एंड करेज एज द डे गेट्स ऑन, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है यह स्ट्रेंथ एंड करेज को गेदर करता है। इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन किसकी है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की लाइन। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द डेथ ऑफ ईच डेज होप एंड अदर होप स्प्रंग अप टू लिव टुमारो। आप एक छोड़ गए होप, एंड अदर के बाद होप, एंड अदर HOP हो जाएगा। तो यह क्या है, यह नेचर ऑफ लाइफ है कि प्रतिदिन देखें फ्रॉम द डेथ ऑफ ईच डे, जैसे ही एक दिन समाप्त होता है दूसरे दिन के बारे में ढेर सारी आशाओं को हम गेदर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको हम अपने हिसाब से डेवलप कर लेते हैं। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के डेथ डजंट चेंज अस मोर देन लाइफ, इट्स यूनिवर्सल फैक्ट रिलेटेड टू लाइफ ऑफ मैन। मृत्यु तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, लिविंग टू डेड, लेकिन चेंज कौन करता है, लाइफ चेंज करती है। लाइफ गिव्स डिफरेंट शेप्स टू अस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और सिचुएशंस। यह ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के। नेक्स्ट, इन लव ऑफ होम द लव ऑफ कंट्री हैज इट्स राइज। यह ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की लाइन है। इन लव ऑफ होम, जिसको घर से प्रेम नहीं है। जैसे अगर आपने GV साहब को पढ़ा होगा, उनका जब नोबेल प्राइज विनिंग स्पीच था तो उन्होंने कहा भी कहा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दयालुता का गुण जो होता है घर से शुरू होता है। घर का मतलब फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द प्राइमरी थिंग्स। अगर आपके अंदर चैरिटी है, दयालुता है, तो दैट मस्ट बी विजिबल इवन इन माइनर वर्क्स टू। उसी तरह से अगर कंट्री के प्रति लव है तो कंट्री के प्रति लव तभी होगा जब आपका लव घर के प्रति होगा, अपनों के प्रति होगा। तो चलें, यह तो प्रश्न है। अभी ढेर सारे डिकेंस के नॉवेल से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आज से जो न्यू चैप्टर बिगिन होगा वह क्या है, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। अब अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर आप सतही तौर पे जान लें कि इट वाज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ अमेरिका बाय द ब्रिटिशर्स विच बिगन फ्रॉम 16th सेंचुरी एंड रीच्ड एट इट्स अपेक्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अमेरिका का जो इन्वेजन था जो 16वीं और 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 18वीं में अपेक्स पे पहुंच जाता है 1774, माने पोस्ट ऑफ 18th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका द ब्रिटिशर्स वर बैडली डिफीटेड एंड द कंट्री गेट्स फ्रीडम फ्रॉम द टिरैनिकल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इनका जो भी प्रताड़नी सरकारें थी उनसे मुक्ति मिलती है। तो जो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है वह जो प्रोडक्ट है एक्चुअली वह क्या है, वह या तो पोस्ट ऑफ 18th या तो 19th सेंचुरी का। लेकिन हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर इज मोर रियलिस्टिक, इट इज़ नॉट ओनली एन इमिटेशन। although mostly the American authors, poets were born and bred, although they were born and bred in America, but they imitated the literature of Britain. यद्यपि ब्रिटेन के लिटरेचर को इमिटेट तो करते हैं, बट देयर इमिटेशन वाज नॉट ओनली द ब्लाइंड इमिटेशन। ब्लाइंड इमिटेशन नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर को देखें तो इसका जो फर्स्ट क्वालिटी है वह क्या है, वह रियलिज्म है। इट इज़ मोर रियलिस्टिक, यह ज़्यादा यथार्थवादी है। दूसरा जो क्वालिटी है वह प्रैक्टिकल है, वह व्यावहारिक है, फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड सिविल लिबर्टी है। लेकिन बहुत डिटेल में डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा। जो टॉपिक है सीधे वहाँ चलते हैं। तो यहाँ जो हेडिंग पड़ेगी वह क्या होगा,
अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। ये अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है। अब आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, स्टडी किसकी करनी है? स्टडी हमको उनकी करनी है जो कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो जो कोर्स में है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिसके बारे में पढ़ा जाएगा वह क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। वह कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका DOB है 1874 टू 1963 टू 1963। चले देख लें। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिगार्डेड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिगार्डेड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज regarded the most popular realistic popular realistic practical and rare American poet who has presented जिन्होंने की प्रस्तुत किया, who has presented the rural picture of, who has presented the rural picture of, क्या है? ग्राम्य जीवन of न्यू इंग्लैंडर्स, of न्यू ENGLAN न्यू इंग्लैंडर्स in North America in North America. He was born on 26th March. He was born on 26th March in 1874. In 1874 at San Francisco, FRANCISCO, San Francisco, California. California. His father William Prescott Frost. His father William PRESCO Prescott Frost was a journalist. Was a journalist, and his mother Isabelle Isabelle Moody MOO, यह क्या थी?
Isabelle Moody was a Scottish immigrant. Moody was Scottish immigrant, and his father was a descendant of Nicholas Frost, Nicho. इनका पूरा नाम क्या था? निकोलस फ्रॉस्ट, who came from Devonshire. Devon, Devon, England. In 1634, during the Caroline period, Caroline period to America. Caroline period to America. Later on, Frost's father. Father of Frost left the journalism. And became a teacher. क्या बन जाते हैं? And became a teacher. But after his death in 1885, his family moved from San Francisco to चले यहीं तक है। चले जो नेक्स्ट न्यू चैप्टर बिगन किया गया है भाई, वह क्या है? वह है अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। वह क्या है? अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है। अब अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दिया जा रहा है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अमेरिका। इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। इस पे फोकस बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं किया गया है कि आपसे यह नहीं पूछता, जो आपके कोर्स में है डायरेक्ट सीधे वहीं चला जा रहा है। तो जो कोर्स में है वह क्या लिखा गया है? अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर ऊपर हेडिंग है। वह पहला कवि जिसको डिस्कशन का आधार बनाया गया वह कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका DOB क्या है? 1874 to 1963 है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिगार्डेड द मोस्ट पॉपुलर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एंड अ रेयर अमेरिकन पोएट। एंड के बाद अ होना चाहिए। एंड अ है भाई स्पीड का। एंड अ रेयर अमेरिकन पोएट who has presented the rural picture of New Englanders in North America. In North America जो न्यू इंग्लैंडर्स हैं वह नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली रहते हैं। 6 यहाँ पे इसीलिए स्टेट्स हैं जिसे न्यू इंग्लैंडर्स कहा जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देखें, परहैप्स द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल एंड विजडमफुल फेलो रिगार्ड किया जाता है। छोटी छोटी कविताएं अगर आपने पढ़ा होगा
तो ऑल्दो ही हैज़ कंपोज्ड अ वेरी शॉर्ट पोएम्स, इनकी कविताएं जो हैं वह बहुत छोटी छोटी हैं, बट दे आर माइंस ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, माइंस ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, लेकिन वह ज्ञान की खदान है। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च, इनका जन्म कब होता है? 26 मार्च 1874 को इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में होता है। हिज फादर विलियम प्रिस्कॉट फ्रॉस्ट वाज अ जर्नलिस्ट, इनके फादर जो थे सैन फ्रांसिस्को में जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। एंड हिज मदर इजाबेला मूडी वाज ए स्कॉटिश इमिग्रेंट, यह स्कॉटलैंड से माइग्रेटेड थे इनके पेरेंट्स। एंड हिज फादर वाज अ डिसेंडेंट ऑफ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर थे उनके जो पूर्वज थे निकोलस फ्रॉस्ट, यह कहाँ से आए थे? देवोन या देवोन शायर जो इंग्लैंड में है, जहाँ से टी.एस. इलियट के पेरेंट्स आए थे वहीं से आए थे। तो वाज अ डिसेंडेंट ऑफ निकोलस फ्रॉस्ट हु केम फ्रॉम देवोन शायर इंग्लैंड इन 1634, 1634 में। ड्यूरिंग द कैरोलाइन पीरियड टू अमेरिका, यह ब्रिटेन से इंग्लैंड से कहाँ आते हैं? कैरोलाइन पीरियड में अमेरिका में। लेटर ऑन फादर ऑफ फ्रॉस्ट लेफ्ट द जर्नलिस्ट, लेटर ऑन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर थे वह पत्रकारिता को छोड़ देते हैं। एंड बिकेम अ टीचर बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनके मृत्यु के टीचर बट आफ्टर हिज डेथ इन 1885 हिज फैमिली मूव्ड फ्रॉम, 1885 में इनके फादर की डेथ हो गई। जब इनके फादर की डेथ हो गई तो यह माने इनका जो फैमिली था अब वहाँ पे सरवाइव करना कठिन हो गया, तो वहाँ से पेरेंटल विलेज जो था वहाँ के लिए मूव करते थे, क्योंकि जो यहाँ पे आपने अभी देखा स्टोरी जो आप पढ़ रहे हैं वह क्या है 18th सेंचुरी या पोस्ट ऑफ 18th की पढ़ रहे हैं। और इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर आए हुए थे माने माइग्रेट थे ब्रिटेन से या इंग्लैंड से, वह कब थे? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी थे। तब यहाँ पे परिवार को सरवाइव करना कठिन हो गया। अब दो कंडीशन थी, एनी हाउ टू एजुकेट टू कंटिन्यू द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, अब शिक्षा को भी चालू रखना है, और दूसरा टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली। विदाउट फादर, विदाउट द हेड ऑफ द फैमिली it becomes more difficult to maintain the expenses because he was the single earner of the family। जो जहाँ पे देखें जो सिंगल अर्नर ऑफ द फैमिली होता है, बाय द मर्सी ऑफ गॉड ऐसा ना हो, उसके डिपार्ट कर जाने के बाद ढेर सारी समस्याएं जनरेट हो जाती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के फादर एक्सपायर कर जाते हैं। जब वह एक्सपायर कर जाते हैं तो फैमिली अंततः मूव करती है, मूव्ड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को टू, ये ओ है भाई, ये सी है, सैन फ्रांसिस्को टू द कंट्री लॉरेंस, टू द कंट्री लॉरेंस, द कंट्री लॉरेंस इन मैसा, MASSACHUSETS, Massachusetts, under the patronage of Robert Frost's grandfather, under the patronship patronship of Robert R है Frost grandfather, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ग्रैंडफादर, परिवार क्या करता है? मूव कर जाता है। हिज मदर इजाबेले मूडी वाज अ, हिज मदर ISA मूडी वाज a POETESS was a poetess, was a poetess by, was a poetess by nature, but after the of
her. After the death of her husband, she began teaching. She began teaching to manage the expenses of the family. Manage the expenses of the family. First, father wanted to name his son. He wanted to name his son after the name of his son. After the name of General Lee. GENE. वह क्या था? After the name of General Lee, who was famous for his revolutionary zeal. General Lee, who was famous for his revolutionary माने क्रांतिकारी. ZEL, zeal during the War of American Independence. American INDEPEND Independence. While माने जबकि his mother wanted to name her son. While his mother wanted to name her son Robert. RORT है भैया, Robert. After the name of Robert born the national Scottish poet. वह कौन थे? द नेशनल स्कॉटिश पोएट थे. चलें देख लें, यहाँ तक लिखा गया दिख रहा होगा, द नेशनल स्कॉटिश पोएट. अब इनके बारे में तो ढेर सारी टाइटल हैं, कुछ कहने की बात नहीं है. सैन फ्रांसिस्को टू द कंट्री लॉरेंस इन मैसाचुसेट्स. यह लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? सैन फ्रांसिस्को से टू द कंट्री लॉरेंस इन मैसाचुसेट्स अंडर द पैटर्नशिप ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ग्रैंडफादर. उनका पैटर्नशिप था, वहाँ पे वह रहते थे. हिज मदर इजाबेला मूडी वाज अ पोएटेस बाय नेचर. इनकी जो मदर थी वह बाय नेचर क्या थी? पोएटेस थी. हिज मदर इजाबेला मूडी वाज अ पोएटेस बाय नेचर, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी बिगन टीचिंग टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. लेकिन हस्बैंड के डेथ के बाद इन्होंने टीचिंग शुरू कर दिया टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. फ्रॉस्ट फादर वांटेड टू नेम हिज सन आफ्टर द नेम ऑफ जनरल ली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो फादर थे वह बेटे का नाम रखना चाह रहे थे, किसके नाम के बाद? जनरल ली के बाद. हु वाज फेमस फॉर हिज रिवोल्यूशनरी जील ड्यूरिंग द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंसी. जो कि अपने वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंसी के पीरियड में अपने जील उत्साह के लिए, भागीदारी के लिए फेमस थे. व्हाइल हिज मदर वांटेड टू नेम हर सन. यद्यपि इनकी मदर जो थी वह नाम रखना चाह रही थी, बीइंग ए स्कॉटिश वुमेन, स्कॉटलैंड की इनकी एंसेस्ट्री थी. तो आफ्टर द नेम ऑफ रॉबर्ट बर्न द नेशनल स्कॉटिश पोएट,
अब रॉबर्ट बर्न के बारे में ढेर सारी टाइटल हैं, शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको जानते हैं। इनको द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है, द प्लाउमैन पोएट कहा जाता है, हलवाहा कवि कहा जाता है। रॉबर्ट बर्न को द प्लाउमैन पोएट हो गए। द प्लाउमैन पोएट के सिवा इनको द होम स्पन पोएट कहा जाता है। होम स्पन पोएट कहा जाता है, होम स्पन घर की जिसको एक्स्ट्रा चाहत होती पोएट, या द नॉस्टैल्जिक पोएट, द प्लाउमैन पोएट। यह सब टाइटल किसकी थी? यह रॉबर्ट बर्न की थी। मदर चाहती थी, बीइंग ए स्कॉटिश वुमेन, शी वाज डिजायरस टू नेम हर सन आफ्टर द नेम, माने टू नेम हर सन Robert after the name of Robert Burns, because she wanted to see her son as an ideal poet. To live here, a footstep for the futurity. यहाँ वह अपने बेटे को चाहती थी कि उतना ही महान बने जैसे कि वह थे। वह भी रॉबर्ट बर्न एक सिंपल फैमिली से थे, काफ़ी कुछ उन्होंने भी लाइफ में क्राइसिस को देखा था। तो ये सब टाइटलें यहाँ नहीं लिखी जा रही, न इनकी ज़रूरत समझी जा रही है, क्योंकि आपको कई बार बताया गया है। सो बी द कंप्रोमाइज, सो विद अ compromise, the son was, अब देखें, सो विद अ कंप्रोमाइज द सन वाज नेम्ड, नाम इनका क्या रखा गया? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, नेम्ड ROBERT, रॉबर्ट ली। अब इनका नाम क्या हो गया? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हो गया। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट was a very sickly and neurotic child, and tuberculosis, ट्यूबरक्लोसिस इनका भी पेरेंटल डिजीज थी। रैन इन द फैमिली, क्लोसिस रैन इन द फैमिली, it was his parental PAREN disease, just like to John Keats. It was his parental disease, just like to John Keats, due to which his father died. Due to which his father DIED, इसी मर्ज से इनके फादर एक्सपायर होते हैं। When Frost Hardly died, when Robert Frost was hardly 20 years old, 74 है, was hardly 11 होगा, 11 years old, उस समय वो कितने के थे? लगभग 11 साल। So his mother always feared for, the same fate to her son, कि कहीं बेटे को भी वही न हो जाए सन। But before his death,
death his father, DISCLO, disclosed his will, that he should be buried in New Hampshire, that he should be buried in New Hampshire. He should be buried in New Hampshire, so to keep the will of his father. So to keep the will, with the will of his father, Robert Frost, ये FROST है, O है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद हिज मदर एंड यंगर सिस्टर, मदर एंड यंगर सिस्टर went to New England, sister went to New England to bury his father, चलें देख लें यहाँ तक है. सो विद कंप्रोमाइज द सन वाज नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, स्टोरी को बताया गया. अंततः विद कंप्रोमाइज नाम क्या रखा जाता है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रखा जाता है. बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ वेरी सिकली एंड न्यूरोटिक चाइल्ड. यह फिजिकली बड़े वीक थे, sickly and neurotic child, and tuberculosis ran in the family. It was his parental disease just like to John Keats. जैसे कीट्स के परिवार में देखें, जॉन कीट्स के परिवार में देखें, ट्यूबरक्लोसिस क्या था, पेरेंटल डिजीज था, फैमिलियल डिजीज था. उसी तरह से ध्यान रखिएगा यह जो ट्यूबरक्लोसिस है जिसे टीबी कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी क्या था, पेरेंटल डिजीज था. द सेम फेट, द सेम पेनफुल लाइफ वाज गिफ्टेड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट जस्ट वाज गिवन टू जॉन कीट्स. तो जो है इट वॉज हिज पेरेंटल डिजीज जस्ट लाइक टू जॉन कीट्स, ड्यू टू विच हिज फादर डाइट, और इसी के कारण इनके फादर की डेथ हुई थी. वैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज हार्डली 11 ईयर्स ओल्ड, मुश्किल से 11 साल के थे. सो हिज मदर ऑलवेज फियर्ड फॉर द सेम फेट टू हर सन. इनकी मदर अक्सर डरती थी फॉर द सेम फेट. बट बिफोर हिज डेथ हिज फादर डिस्क्लोज हिज विल, मरने के पहले उन्होंने अपने विल, वसीयत, इच्छा को डिस्क्लोज किया था दैट ही शुड बी बरीड इन न्यू हैम्पशायर. इनको कहाँ दफन किया जाएगा, न्यू हैम्पशायर में दफन किया जाएगा. सो टू कीप द विल ऑफ हिज फादर, पिता की इच्छा रखने के लिए, कीप द विल ऑफ हिज फादर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद हिज मदर एंड यंगर सिस्टर वेंट टू न्यू इंग्लैंड टू बरी हिज फादर. अब फादर को वहाँ दफन करना था चूँकि उन्होंने अपने विल को डिस्क्लोज किया था. इट वॉज द लास्ट विल विच मस्ट बी फुलफिल्ड by the family members, although he was a teenager and he was unable to manage the expenses of the family, and the family was also suffering from economic crisis. Both there were several problems. अब दो ही नहीं कई समस्याएं थी. एक तो 11 साल की अवस्था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद ही छोटे थे, मदर को उनको लेकर के जाना, उनको वहाँ दफन करना. वहाँ दफन करने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन रिटर्निंग के लिए, एक रिटर्निंग जर्नी के लिए एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पाता है. जब मैनेज नहीं हो पाता है देन डिसाइडेड टू स्टे देयर. तो इन लोगों ने इरादा बनाया है कि अब हम भी यहीं रुक जाते हैं. तो चलें, आज से एक नए अध्याय का शुभारंभ किया गया जिसको आपने देखा. अब जो आज के प्रश्न हैं पहले उनको देख लें. रिगार्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल which is regarded the first
विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा गया ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ऑफ चार्ल्स डिकेंस। कौन सा फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल? इनका है दूसरा बारनाबाई रूज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर BARNA was published in the, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? नेक्स्ट, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ बारनाबाई रूज? व्हाट इज द टाइटल ऑफ बारनाबाई, इसका सब टाइटल, व्हाट इज सब टाइटल ऑफ बारनाबाई रूज? बारनाबाई रूज इज ऑल्सो रिगार्डेड नेक्स्ट, बारना रूज इज ऑल्सो रिगार्डेड, और कैसा उपन्यास माना था? डिकेंस हैज रिटन बारनाबाई रूज ऑन द पैटर्न ऑफ, डिकेंस हैज रिटन बारनाबाई रूज, डिकेंस हैज रिटन बारनाबाई रूज ऑन द पैटर्न ऑफ, ऑन द पैटर्न, किस पैटर्न पे इन्होंने लिखा हुआ है? चलें देख लें। तो यह आज के प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। यह ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, जिनको देखते ही आप समझ जाएंगे। तो विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट, बारनाबाई रूज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ बारनाबाई रूज? नेक्स्ट, बारनाबाई रूज इज आल्सो रिगार्डेड डिकेंस हैज रिटन बारनाबाई रूज ऑन द पैटर्न ऑफ। चलें देख लें। अभी जो प्रश्न दिए गए आपको कई बार बताया गया है कि जिस रचना को लिया जाता है तो पूरे के पूरे प्रश्न जब तक उससे समाप्त नहीं होते, नेक्स्ट बिगिन नहीं होते। तो कई बार आप तुक्के भी मार लेते हैं कि भाई ये लाइनें पूछी जा रही हैं और बैकन पढ़ाया जा रहा है। लाइन पूछी गई है, बैकन पढ़ाया जा रहा है, या लाइन पूछी गई है, डिकेंस पढ़ाया जा रहा है। तो प्रायः आप देखते हैं कि जिस चैप्टर से लाइन या जिस चैप्टर से कोई भी प्रश्न उठाया जाता है, जब तक वो चैप्टर पूरा नहीं होता तो दूसरा चैप्टर से प्रश्न नहीं ले जाते। माने मिक्स्ड क्वेश्चंस आर नॉट गिवन हियर, नहीं दिए जाते हैं। तो आपको राइट रिस्पांस को सेलेक्ट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह सब पूरे हो जाएंगे तो आपको जो मॉडल पेपर जाएगा वह मिक्स क्वेश्चन का होगा, और जो मिक्स क्वेश्चन का होगा वहाँ पे आपको दिक्कत होगी अगर आप इनको सिस्टमेटिक याद नहीं करेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि कोर्स आपका काफ़ी कुछ हो चुका है। अब अमेरिकन, इंडो एंग्लिकन 3 ठो बचे हैं, 3-6 राइटर बचे हैं जो बहुत दिन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके शॉर्ट क्रिएशन है, बहुत जल्दी होते हैं। फॉर्म्स एंड मूवमेंट चल ही रहा है। तो आप अपनी तैयारी को एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें, अच्छे से तैयारी करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय।